আসানসোল সার্কিট হাউসে পশ্চিম বর্ধমান জেলার পঞ্চায়েত এলাকার প্রশাসনিক পর্যালোচনা বৈঠকের শেষে জেলার পঞ্চায়েত এলাকায় কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েত দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী কপিল মহেশ্বর পাতিল। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, এদিন জেলায় স্বচ্ছ ভারত মিশন, 100 দিনের কাজ, প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা ও প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা সহ কেন্দ্রীয় প্রকল্প নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। 50 ফিটনেস কমিশনে যে পরিমাণ কাজের অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছিল তার মধ্যে এই জেলাতে চলতি আর্থিক বছরে প্রথমে 8 মাসে মাত্র 40% কাজ হয়েছে। একটি মাত্র প্রকল্পে 50% কাজ হয়েছে। একটা জেলার ক্ষেত্রে তা একেবারেই ঠিক নয়। এই কাজ 75% হওয়ার কথা ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই ছিল। হিসাব মতো ডিসেম্বরের মধ্যে 75% কাজ হয়ে গেলে বাকি 3 মাসে বাকি 25% কাজ করানো অনেক সহজ হয়। মন্ত্রীর কথায় আগামী 1 মাসের মধ্যে আরো 35% কাজ করতে হবে, যা শুধু অসম্ভবই নয়, অনেক ক্ষেত্রে কাজ দ্রুত করতে গিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। মন্ত্রী আরো বলেন, জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা বলছেন নতুন জেলা একটু সমস্যা হচ্ছে, তবে তারা আমায় বলছে কাজ করা ঠিক সময়ের মধ্যে করে দেবেন। পাশাপাশি 100 দিনের কাজ সহ বিভিন্ন প্রকল্পে বাংলাকে টাকা দিচ্ছে না দেওয়ার প্রসঙ্গে কপিল মহেশ্বর পাতিল বলেন, এই অভিযোগ ঠিক নয়। কেন্দ্রীয় সরকার প্রকল্প ঠিক করে টাকা বরাদ্দ করে, তার জন্য গাইডলাইন থাকে। সব রাজ্যকেই সেই গাইডলাইন মেনে কাজ করতে হবে, তবে কেন্দ্র সরকারের টাকা দেবে। 100 দিনের কাজে যে কথা বলা হচ্ছে তার অভিযোগ তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ শতাব্দী রায়ও করেছিল। কেন্দ্র সরকার তার দেখতে গিয়ে গাইডলাইন না মেনে কাজ না করার তথ্য সামনে পায়, তাই টাকা আটকে দেওয়া হয়। প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনা ও আবাস যোজনার অভিযোগও ছিল, বাংলার নাম বদল করা হয়েছে। এদিন সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী কপিল মহেশ্বর পাতিল রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা নিয়ে রাজ্যের শাসক দলকে আক্রমণ করেন। তিনি ভোট দেওয়া তো একজন মানুষের গণতন্ত্র অধিকার, তা হচ্ছে কিনা তা দেখার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েত রাজ্য দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী কপিল মহেশ্বর পাতিল কাজ না হওয়ার অসন্তোষ প্রকাশ করা নিয়ে জেলা পরিষদের অতিরিক্ত জেলা শাসক কোনো মন্তব্য করতে চায়নি। গ্রামাঞ্চল শিল্পাঞ্চলের খবর, ব্যুরো রিপোর্ট। मेरे सामने किसी ने बात नहीं लाई, आपने सवाल पूछ दिया, तो मैं आपके माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट को ये बताना चाहूँगा कि पंचायत चुनाव है। पंचायत चुनाव में लोगों को निडर होके अपने बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो हमको वोट का अधिकार दिया है, वो वोट का अधिकार जाके उसको वोटिंग बूथ में जाके करने को मिले, उसको स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन देके उसके वोटिंग का अधिकार दिलाना चाहिए। सर, ये जो आप पंचायत बोर्ड में अभी जो अधिकारी आपके काम नहीं किया, आपने बताया कि 40% काम किया, तो इसमें किसकी सबसे ज़्यादा भूमिका कम रही है, सरकार की या अधिकारी की काम करने? देखो ऐसा है, मैं अभी ये स्टेट का रिव्यू लिया तो सरकार के बारे में यहाँ पे मैं बता नहीं पाऊँगा। मैंने सुझाव दिया मेरे पीए को कि नेक्स्ट टाइम मैं जब आऊँगा तो कलकत्ता में स्टेट का रिव्यू करूँगा, फिर डिस्ट्रिक्ट में आऊँगा सर, तब मुझे पता चलेगा स्टेट का क्या पोजीशन है। अभी यहाँ पे लिया तो यहाँ पे जिला प्रशासन ही उसका आखिर में उनको ही जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। सर, आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपको कुछ बताया गया, कुछ जो रोज कुछ रिक्वायरमेंट की कुछ बताया गया क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन? नहीं, ऐसा आज कुछ ऐसा बताया नहीं गया। खाली जो मेरे मंत्रालय से संबंधित जो भी यहाँ पे स्कीम है वो स्कीम का रिव्यू लिया गया और मुझे जिसमें भी इसमें सुधार करने की आवश्यकता है मैंने वो सुझाव उनको दिया है कि इसको सुधारो, इसका खर्चा कैसे ज़्यादा हो इसके ऊपर ध्यान। सर बोल रहे हैं कि जो अभी आप ये दौरा किए हैं, ये दौरा क्या राजनीतिक रूप से लिया जाएगा क्या दौरा को? क्योंकि इससे पहले आप नहीं आए थे और ठीक पंचायत इलेक्शन के समय आपकी दौरा हुई है, और ये जो रिव्यू हो रही है, इस रिव्यू को क्या हथकंडा बनेगा क्या राजनीति में? नहीं, ऐसा नहीं है। ये रिव्यू से क्या हथकंडा बन सकता है बताइए? ये रिव्यू जो है वो स्टेट के विकास के लिए है और स्टेट में रहने वाले जितने भी स्टेट डिस्ट्रिक्ट के विकास के लिए, और डिस्ट्रिक्ट में जो भी रहता है उसके विकास से संबंधित है। ऐसा नहीं कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहा हूँ इसलिए मैं खाली बीजेपी का एक एजेंडा लेके यहाँ पे रिव्यू ले रहा हूँ, ऐसा तो कभी होता नहीं। वो तो पूरे स्टेट का डिस्ट्रिक्ट का होता है। स्टेट का जो रूलिंग पार्टी है टीएमसी, वो आपका रिव्यू मीटिंग को लेकर एक सवाल थ्रो किया है कि रिव्यू मीटिंग में कैसे भाजपा नेता प्रेजेंट रहे। भाजपा नेता कौन है? तो विधायक है। नहीं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट दिलीप देव भी हैं और सुब्रत मिश्रा भी हैं। ऐसा है, देखिए कोई
रिव्यू में अभी आपके पास, आप तो जैसे रिव्यू ख़त्म हो गया आप अंदर आए, आपके पास कौन रूलिंग पार्टी का आया आदमी आया मुझे पता नहीं। हाँ, तो इसलिए मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इसमें कोई पार्टी बिल्टी का आदमी का संबंध नहीं आता है। जो लोग बैठे थे मैंने उनको बोला कि आप बाहर बैठिए, ये ऑफिशियल रिव्यू है, इसमें आप बैठ नहीं सकते, विधायक ठीक करके उनको बिठाया। जी, तो क्या लगता है कि 1 महीने में 75% कंप्लीट हो पाएगा? मैंने तो उनको बोला है कि नेक्स्ट मंथ मैं आऊँगा तब फिर से रिव्यू लूँगा, मुझे तो चाहिए, क्योंकि ऐसा है सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश में विकास गाँवों का करने के बारे में जो सेंट्रल मोदी जी का संकल्प है वो संकल्प लेके हम लोग चलते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है कि जो हमारे पास फंड आता है वो टाइम पे खर्चा हो। बार बार जो बोला जा रहा है कि पैसा नहीं दे रहा, तो वो बात इसका मतलब वो बात ही गलत है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा देखो, कोई भी गवर्नमेंट हो, किसी भी पार्टी की हो, किसी भी राज्य को इस तरह से पैसा नहीं देने की बात कभी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करती। जो स्कीम में जहाँ पे अच्छा काम हो रहा है वहाँ पे तो फंड देने के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा आगे आती है। यहाँ पे आज मैं 3 दिन के दौरे पे आया हूँ, लोकसभा का प्रवास है, उसमें केंद्र सरकार के योजनाओं का रिव्यू लेने आज मैं यहाँ पे आया था। तो रिव्यू मैंने लिया, लेकिन केंद्र सरकार के सभी योजनाओं का रिव्यू आज नहीं हो पाया, क्योंकि उन लोगों ने मेरे मंत्रालय से संबंधित ही रिव्यू आज यहाँ पे मुझे दिया गया। इसमें जैसे हमारे मंत्रालय की सिफारिश से फाइनेंस कमीशन का जो 15 फाइनेंस कमीशन का फंड आता है उसका रिव्यू हुआ। इसमें स्वच्छ भारत मिशन में उसका रिव्यू हुआ, फिर इरिगेशन इसका रिव्यू हुआ, मनरेगा का हुआ, प्रधानमंत्री आवास योजना का हुआ, फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का हुआ। इसमें अभी ये साल ख़त्म होने में लगभग 3 महीने बचे हुए हैं, और मैंने रिव्यू लिया तो उसमें परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो 40% के ऊपर फंड अभी तक खर्चा नहीं हुआ। 15 फाइनेंस कमीशन का उसका देखा जाए तो हम लोग ग्राम पंचायत को पैसा देते हैं, लेकिन उसका 3 टायर है। जिला परिषद को भी पैसा आता है, ब्लॉक पंचायत को भी पैसा आता है, उसमें भी अभी परसेंटेज वाइज कम खर्चा हुआ है। तो मैंने सुझाव दिया है कि इसको जल्द से जल्द खर्चा करना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ईयर एंडिंग आता है फिर अगर पैसा खर्चा करना है तो उसमें धांधली होने की आकांक्षा ज़्यादा होती है, क्योंकि टाइम कम है, पैसा खर्चा करना है, पैसा रिटर्न नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रशांत शुक्ला जी ने मुझे कहा है कि जल्द से जल्द, अभी मैं नेक्स्ट महीने जब आऊँगा तो आज हम लोग बैठे, अभी दिसंबर की शुरुआत है, 75% खर्चा होना आवश्यक था तो 40% हुआ है। उसको 1 महीने के अंदर और 35% खर्चा कैसे होगा? अगर 75% अचीव कर लिया तो फिर नेक्स्ट 3 महीने में 25% खर्चा होकर 100% केंद्र सरकार की योजनाओं में से पैसा खर्चा होगा। आपने पूछा क्या, क्यों खर्चा ये लोग क्यों कर नहीं पाया? अभी ऐसा है जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है तो उनका 2001 में ये शुरू हुआ, 2017 तक पहला फेज़ ही चल रहा है, तो 17 साल कोई फेज़ चलता नहीं है। मैं भी जिला पंचायत का वाइस प्रेसिडेंट उस वक्त था, बाद में मैं प्रेसिडेंट बना था जिला परिषद का। तो हमारे यहाँ पे 2001 में जो शुरू हुआ, 2005 में ही फर्स्ट फेज़ ख़त्म हो गया था। तो कुछ कारण होंगे डिले के, अभी कारण तो मेरे सामने आए नहीं, लेकिन मैंने अभी उनको सबको सूचना की है कि जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो ये सारी जानकारी मुझे दीजिए क्योंकि केंद्र सरकार चाहती है कि हर एक गांव में जो हमारे नॉर्म्स में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के रोड बैठते हैं वो रोड की सुविधा हर एक गांव को मिले। मनरेगा के माध्यम से हर एक आदमी को रोज़गार मिले, जो रोज़गार चाहता है, जॉब कार्ड बना के उसको रोज़गार मिले, ये भी चाहते हैं। स्वच्छ भारत मिशन में भी हर गांव स्वच्छ होना ज़रूरी है। ODF में उन लोगों ने
ODF प्लस में अभी जा रहे हैं, उसमें टाइलोट के ऊपर अच्छा काम किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में थोड़ा सा काम बाकी है। उस सभी को पूरा टारगेट अचीव करने के लिए तो थोड़ा सा और इनको ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये बता रहे हैं कि हमारा नया ज़िला है, नया ज़िला, इसलिए हम लोग अभी थोड़ा स्पीड पकड़ रहे हैं। आने वाले दिनों में थोड़ा कोशिश करेंगे तो और टारगेट अचीव करने में आसानी होगी। ना अभी तक जो रिव्यू हुआ है आपने संतुष्ट हुआ क्या? तो जो 40% काम हुआ है इसके बारे में अभी देखो, जब मैंने कहा कि मुझे 75% काम की आवश्यकता भी थी, तो अभी 40% हुआ है, तो वो संतुष्टि वाला तो काम है ही नहीं। पंचायत डिपार्टमेंट में बहुत सारे स्कीम चलता है, तो हर एक स्कीम में ही 40% है या कुछ स्कीम अच्छा है? नहीं, ऐसा है कि इसमें 41 एक ही मुझे मिला जिसमें 50% है। कौन सा? वो क्या है? वो अभी मैं बता नहीं पाऊँगा उसमें। तो एक कोई इतने स्कीम में कोई एक स्कीम है जिसमें 50% के करीब है, लेकिन इसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। हर एक मनरेगा इस स्टेट का बहुत बड़ा इशू है। स्टेट गवर्नमेंट कहता है कि सेंट्रल रुपया नहीं दे रहा, सेंट्रल रुपया नहीं दे रहा। इसके बारे में आप लोग नहीं, क्या ऐसा नहीं है। ये सेंट्रल के ऊपर जैसा ऐसा कुछ कारण नहीं मिलेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर सीधा एलिगेशन कर देंगे, बराबर। मनरेगा में जहाँ जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है, वो गाइडलाइन से हट के जिन्होंने पैसा खर्चा किया है, अपने हिसाब से कोई गाइडलाइन बनाई और फिर पैसा खर्चा किया, उसकी कंप्लेंट हुई हमारे पास। कंप्लेंट करने वाले भी टीएमसी की सांसद शताब्दी जी थी। तो उसका इंक्वायरी करने के बाद पता चला कि इसमें नॉर्म्स से हट के काम किया है, तो वो स्टेट को बेयर करना चाहिए, स्टेट ने नहीं करना चाहिए था जो किया, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा नहीं दे पा रही है। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे किसी और पार्टी की सरकार है इसलिए पैसा नहीं देना, ये काम नहीं। मैंने यहाँ पे रिव्यू लिया इनसे, वही आप जो सवाल मेरे से पूछ रहे हैं मैंने इनसे पूछा कि मनरेगा में आपके यहाँ पे ऐसा हुआ है क्या? इन्होंने कहा नहीं हुआ है। फिर आपको पैसा मिला क्या? तो इनको पैसा मिला है। जहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं हुई है वहाँ पे पैसा दिया गया है। अभी कंप्लेंट करने वाले भी उन्हीं के लोग हैं, काम करने वाले भी उन्हीं के लोग हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर उंगली दिखाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जो अभियोग है इसका बारे में नाम चेंज कर लेंगे, वो तो हमारे लोग जब आए थे यहाँ इंक्वायरी के लिए तो उन्होंने ऐसा बताया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना, उसको बांग्ला आवास योजना के नाम से चलाया गया था। जब हमारे लोग आए तो बांग्ला आवास योजना के ऊपर स्टिकर चिपका के उधर प्रधानमंत्री आवास योजना लगाया था। बाद में उन लोगों ने निकाल के देखा तो वो पता चला। इस तरह से नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये स्कीम ही है, ये स्टेट और सेंट्रल की दोनों की मिला के स्कीम है, तो उसको नाम दिया है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कोई नाम नहीं है, ये तो हमारे देश का गौरव है, तो वो नाम से किसी को कुछ दिक्कत होने की आवश्यकता है ऐसा मुझे लगता नहीं। अभी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी प्रधानमंत्री है, ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी ग्राम सड़क योजना ऐसा नाम नहीं है, या नरेंद्र मोदी आवास योजना ऐसा भी नाम नहीं है। ये प्रधानमंत्री, इनके पहले जो भी प्रधानमंत्री थे वो भी प्रधानमंत्री, बाद में आएंगे वो भी प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री आवास योजना प्रधानमंत्री देश के होते हैं। बंगाल में आप आए हैं, बंगाल के लिए कुछ शुभ खबर मिलेगा क्या कि इसकी स्कीम में आप लोग ज़्यादा से रुपया दे रहे हैं, ऐसा कुछ है? देखो भैया, ऐसा होता है, कोई मिनिस्टर जब किसी स्टेट में जाता है तो अपने आप ऐसा कोई फंड लेके नहीं जाता है। तो स्टेट हमारे पास क्या प्रपोजल भेजता है, कौन से स्कीम में भेजता है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो सिफारिश करके जब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको पूरा उसके नॉर्म चेक करके कौन से योजना में उन्होंने पैसा मांगा है, ये जो प्रोजेक्ट है वो वाइबल है नहीं है, ये सारा देख के फिर उसको सैंक्शन कराता है। आपने कोई सुझाव दिए हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को? अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मैंने कहा है कि ये जो सारी योजनाएं है, ये सारी योजनाओं का खर्चा दिसंबर एंड तक इसको बढ़ाना चाहिए, और उन्होंने कहा है कि हम लोग इसको अचीव करेंगे। और दूसरी बात ऐसी है कि जिस भी स्टेट में हम लोग जाते हैं
तो सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे योजनाओं का रिव्यू लेते हैं। जैसे जल जीवन मिशन हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना है, प्रधानमंत्री इंश्योरेंस योजना हो, ये सारी जो योजना है, सारे योजनाओं का हम लोग वहाँ पे रिव्यू लेते हैं। यहाँ पे खाली हमारे मंत्रालय से संबंधित हुआ तो मैं जब नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो मैंने कहा कि सारे योजनाओं का रिव्यू नेक्स्ट टाइम मुझे लेना है, तो इस हिसाब से आप तैयारी करिए। क्योंकि क्या होता है, जब हम स्टेट में आते हैं तो हमें पता चलता है स्टेट कौन से मंत्रालय के योजना में अच्छा काम कर रही है और इसमें इनको ज़्यादा फंड देने की आवश्यकता है, इनकी डिमांड गई होगी, तो हम लोग उस तरह से सुझाव देते हैं पीएमओ को, ये इनकी रिक्वायरमेंट को करना चाहिए। ये हमारे सामने कुछ आएगा ही नहीं तो हम बता नहीं पाएंगे। स्टेट की तरफ से आपके सामने कोई रिक्वायरमेंट नहीं दिया गया आज भी? नहीं, ऐसा नहीं होता। मेरे सामने देने की बात नहीं, इसका एक सिस्टम बना हुआ है। इसका सिस्टम ऐसा है, इस डिस्ट्रिक्ट को कुछ चाहिए तो डिस्ट्रिक्ट भेजेगा स्टेट के पास, स्टेट भेजेगा सेंट्रल के पास। कोई मिनिस्टर को कोई ऐसा स्कीम में प्रपोजल नहीं दे सकता। आवेदन हमें मिलता है कि भैया हमारा ये प्रपोजल गया है, तो ये प्रपोजल हमारा पेंडिंग है या कुछ है, ऐसा आवेदन मिलता है तो हम वो संबंधित जो मंत्रालय होता है उनके पास वो फॉरवर्ड कर देते हैं।